Good evening, ladies and gentlemen. I, Swapnil Admane, on the behalf of entire NJ employees and partners, along with my colleague Ashim Jana, welcome you all for this session. Thanks for attending this session. पहले तो आपने अपना personal time निकाला है, and I would like to thanks for that. तो जैसा आप जानते हैं कि भाई हमें गोल बेस्ड प्लानिंग या कोई भी प्लानिंग कोई भी टारगेट अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज फार एज फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल बेस्ड प्लानिंग इज कंसर्न, तो हम अपने लाइफ में 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं. नॉर्मली वी पास थ्रू 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम. पहला जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जो पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक का रहता है. ओके, यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स अलग अलग लैंग्वेज में सीखते हैं. Then there is something called professional education after 10th, 11th standard से art, commerce, science, and then sub branches as well as professional courses you can get. तो ऐसा ह्यूमरसली कहा जाता है कि जितना स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हर साल भारत के कॉलेज में से बाहर निकलते हैं. But there is something called third education system, that is called financial education. वो दुनिया के किसी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, वो अपने को लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ता है. इसमें हम भारतीय बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा अगर नहीं रहता था तो ये केबीसी, पर्ल, पैन कार्ड क्लब, शारदा या सहारा चिट फंड ऐसे फियास्को नहीं होते थे. और इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं ना, वो ओनली इलिटरेट नहीं है, वेल एजुकेटेड, highly drawn salary drawn people are also lost their money. तो ऐसी नौबत ना आए, तो इसीलिए हम ये सैटरडे स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपको बेसिक स्टेप्स हम सिखाने की कोशिश करते हैं. So I am just sharing my presentation. Okay, Ashim, just let me know whether the presentation is visible to you or not. Is it visible, Ashim? Good to go, sir. Yeah, thank you. So the topic of today's seminar is 10 basic steps to achieve your financial needs. तो ये financial needs क्यों हमें achieve करनी है? So just I would like to give my own example. When I was going to my engineering college, my dad gifted me moped, because at that point of time एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट were going on only moped. Hero Hook या Luna TFR या Tango was the vehicle which we used. So that cost of vehicle was ranging in between 10,000 to 18,000 rupees, and maintenance cost was 500 rupees per month in the form of petrol. But at that point of time, if you see the guaranteed return kind of thing, PPF was offering you 12% kind of return, Nationalized Bank was offering you 12 to 13% kind of return, cooperative banks, cooperative societies were offering 18 to 20% kind of return, guaranteed return that too. And if you see the culture, उस वक्त जो अपना culture था, तो credit card was not prevalent, या for that matter Domino's was not there, pizza हमने सुना नहीं था, hoteling culture was not prevalent. So aspiration level was were restricted. बट आज 21 साल बाद, 20 साल बाद, एक जनरेशन गैप का अगर मैं बात करूं, तो आज का लड़का लड़की जब कॉलेज जाते हैं तो उनके पेरेंट को उनको 3 चीजें कंपलसरी देनी पड़ती है. वन इज बाइक, सेकंड इज मोबाइल, एंड थर्ड वन इज लैपटॉप. तो जो रेंज है उसका खर्चे का आज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का इज रेंजिंग फ्रॉम 60,000 टू 2 लाख रुपीस. एंड मेंटेनेंस के रूप में क्या हो गया, वही 500 रुपीस का खर्चा has now gone up to 2,000 rupees in the form of recharge, antivirus, and petrol. So ये खर्चा हो गया. Now what happened to my guaranteed return kind of thing? तो जो PPF मुझे 12% kind of return दे रहा था, वो 7 to 8% रेंज में आ गया. Nationalized Bank की FD is offering now 5.5 to 6% kind of return. Cooperative bank, cooperative societies are offering now 8 to 9% kind of return. और आज के डेट में I need to pay my EMI for credit cards. I need to bring my grocery from DMart. I need to go to outing, and I'm asking for the home delivery for pizza. मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि एक लेवल पे हमने अपने घर खर्चे सब्सटेंशियली बढ़ा दिए हैं, बट दूसरे लेवल पे जहाँ कहीं भी आई वाज सेविंग, द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट सेविंग हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन. एंड यही चार्ट मुझे ये इंस्पायर करता है कि अगर मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना है तो मुझे ज्यादा देर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके नहीं चलेगा. विद दिस थॉट, गोल बेस्ड प्लानिंग इज कमिंग इनटू पिक्चर. Why do you require goal-based planning? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, तो कुछ सब क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछने चाहिए.
अगर इन क्वेश्चन का आंसर ना है तो यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर गोल बेस्ड प्लानिंग. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई विल रिटायर एंड माय अर्निंग विल गो स्टॉप, will I be able to maintain standard of living after retirement? Okay. In the case of my non-existent, जब अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पश्चात मेरे फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए और आने वाले फाइनेंशियल गोल्स के लिए मुझे कितने पैसों की आवश्यकता लगेगी, इसका कोई मैंने कैलकुलेशन किया है क्या, और इसके लिए मैं पर्याप्त मात्रा में निवेश कर रहा हूँ क्या. थर्ड, मेरे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और शादी के लिए उस वक्त कितने रुपयों की आवश्यकता लगेगी. हैव आई डन द कैलकुलेशन फॉर दैट एंड एम आई सेविंग इनफ फॉर दैट. Okay, and these are the questions you need to think again and again. If the questions answer are no, so step one, what you need to do. जैसा वो कहता है कि charity begins at home. So first step, what you need to do, income minus saving is equal to expenses. ये equation आपको life में implement करना पड़ेगा. Okay, so spend what is left after saving and not save what is left after spending. Okay, नॉर्मली आज की यंग जनरेशन मोस्टली ये सेकंड इक्वेशन फॉलो करके दिखता है. ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस व्हिच यू कैन पोस्टपोन. ओके, if can possible if possible try to control them as well, क्योंकि यू नो ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सैक्रिफाइसिंग टुडे फॉर हैविंग बेटर टुमारो. ओके, सो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि करंटली आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे आपका 10-20% डिग्रेडेशन होगा, लेकिन throughout your life you will be able to maintain that standard of living. But if you follow the equation number 2, after retirement hardly 1 or 2 years down the line you will drastically degrade your standard of living if you follow income minus expenses equal to saving. पैसा एक ही भाषा बोलता है. अगर मैं ये अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो आज अगर तुम मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, बट आज अगर तुम मुझे उड़ाओगे तो पक्का कल मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे. Okay, third principle in the life you should follow is that कि earning money is not that much important. आपने पैसा कितना कमाया है उतना important नहीं है, आपने उस पैसे को किस तरीके से मैनेज किया ये ज्यादा important है. और इसका लाइव एग्जांपल अगर देना चाहे तो अमिताभ बच्चन जी जैसा एग्जाम हमें ढूंढ के नहीं मिल सकता है. अमिताभ बच्चन जी का करियर ग्राफ हम देखें तो 2 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले फेज में वो अभिनय के शहंशाह थे, जितना साइनिंग अमाउंट वो मांगते थे उनको मिलता था. इतना पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी एक वक्त डेट रिडन हुआ करते थे. प्रतीक्षा नामक बंगला भी उनको गिरवी रखना पड़ा था. एबीसीएल कॉर्पोरेशन वाज अ डेट रिडन कंपनी. ओके, कौन बनेगा करोड़पति वाज नॉट हिज चॉइस, बाय फोर्स ही नीड टू डू दैट सीरियल. एंड अपने अभिनय के जादू द्वारा उन्होंने वो मालिका या धारावाहिक इतना हिट करके दिखाया कि आज वो 15वां या 16वां पार्ट कर रहे हैं. फॉर्चुनेटली उनके लिए सेकंड लाइफ लाइन एक्टिंग का मिल गया, लेकिन हमारे लिए एक्टिंग नहीं हो सकता, पैसे का एक्टिंग कोई नहीं कर सकता. देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंट मनी. ओके, फिजिक्स का एक नियम है, जितने फास्ट रेट से चीज बढ़ेगी उतनी फास्ट रेट से वो घटती भी है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द लाइन. सो लाइफ, सो स्टेप नंबर 1, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. ये आप रूल फॉलो कीजिए. सेकंड, इन्फ्लेशन को जरा आप ध्यान में रखिए. इन्फ्लेशन यानी क्या, क्योंकि मैंने चीजों के दामों में बढ़ोतरी. तो 1990 में अगर सोने का दाम मूल्य 3,200 रुपया तोला हुआ करता था, इन 2020 इट इज हाउरिंग अराउंड 50,000 रुपीज पर तोला. यानी इसमें रिटर्न बोलिए या महंगाई बोले 9.6 का बढ़ चुका है. सिमिलरली पेट्रोल, डीजल एंड मिल्क पे भी अगर देखोगे तो 7.5 से 8% का दामों में बढ़ोतरी है. इसे हम कहते हैं महंगाई. अकॉर्डिंग टू आरबीआई एस्टिमेट, जो महंगाई पिछले 30 सालों से बढ़ी है वो 6.5% से बढ़ी है. एंड एट द सेम टाइम पैसों की जो दाम है या वैल्यू है वो कम हुई है. यानी 1990 में अगर आप 1 लाख रुपए तिजोरी में डाल के रखते थे और 2020 में वो अगर निकालते थे तो आज 11,000 वर्थ रुपीज गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद पाते थे. इतना ड्रास्टिकली उसका दाम गिर चुका है. In such case, it is imperative to save. We need to save rather. तो सेव क्यों करना चाहिए? तो एक छोटा सा एक गोल लेते हैं अपने लाइफ का, पीसफुल रिटायरमेंट, बिकॉज एवरीबॉडी इज गोइंग टू फेस दैट गोल इन नियर फ्यूचर. तो एक 1995 में एक मिडिल क्लास फैमिली जब अपना घर खर्चा चलाती थी तो उनको 5,000 रुपए महीने से घर खर्चा लगता था. 2020 में आज के दौर पे अगर मैं बात करूं तो 25,000 रुपीज पर मंथ वो घर खर्चा हो चुका है. ओके, और इसी रेट से, यानी मैंने कुछ बड़ा आंकड़ा नहीं लिया है, 6.5% से इसको इंक्रीज किया है. तो इसी रेट से अगर 25 साल बाद एक मिडिल क्लास फैमिली को अपना घर खर्चा अगर चलाना है तो 1,25,000 रुपया महीना मंथली लगेगा. उतना ही लीटर पेट्रोल, उतना ही लीटर दूध, उतनी ही किलो सब्जी, सेम प्रोपोर्शन में.
सो 6.5% से सिर्फ मैंने महंगाई को बढ़ाया है. So in such scenario, what would be the retirement corpus one need to take care of? तो 1995 में एक फैमिली अगर रिटायर होती थी तो उनको 5,000 इंटू 12 महीने इंटू 25 साल यानी 15 लाख रुपए के आसपास रिटायरमेंट कॉर्पस होता था तो हो जाता था. वही 2045 में अगर किसी को रिटायर होना है तो वो कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 3.75 करोड़ रुपीस. सो दिस इज व्हाई वी नीड टू सेव फ्रॉम टुडे. ओके, तो ये आंकड़ा जो है ना 3.75 करोड़, ये जरूर ध्यान में रखिएगा. ये हमें रेफरेंस लगेगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, कुछ स्लाइड्स में हम उसके कैलकुलेशन देखेंगे. नाउ सो फॉर दैट वन नीड टू गो फॉर गोल बेस्ड प्लानिंग. अगर उसका डेफिनेशन अगर मैं वन लाइनर करूं तो गोल बेस्ड प्लानिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस टू इंश्योर इन फ्यूचर राइट अमाउंट ऑफ मनी शुड बी अवेलेबल इन राइट टाइम, दैट टू इन राइट हैंड्स. अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा बच्चा 5 साल का है, उसे हायर एजुकेशन को 18वें साल में जाना है. फलाना कोर्स की कीमत अगर 10 लाख रुपए है, अगर 13 साल बाद मुझे बच्चे को हायर एजुकेशन भेजना है और 10% से एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस कोर्स का फीस 37 लाख टू 38 लाख होना है. वो 38 लाख रुपीस मुझे 13 साल बाद पाने के लिए मुझे आज 8% से 10% से या 12% से कितना रुपया निवेश करना पड़ेगा, जिसके तहत मैं रहूं ना रहूं, मेरा एडवाइजर रहे ना रहे, वो मार्केट ऊपर रहे कि नीचे रहे, लेकिन मेरे बच्चे के हाथ में 13 साल बाद 37-38 लाख रुपीस मिलने चाहिए. इसके लिए की गई प्रोविजन यानी गोल बेस्ड प्लानिंग का एक पार्ट है. सो स्टेप नंबर 2, फिर अपने गोल तो बोल दिए है तो गोल को हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा. सेटिंग अप योर गोल. सो बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किस गोल के लिए कर रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. तो आपके माइंड में कुछ तो भी क्लिक होगा कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चे की शादी, मेरा रिटायरमेंट, नया घर. सो बेस्ड ऑन दिस नीड यू कैन डिवाइड योर गोल्स इनटू 3 पार्ट. शॉर्ट टर्म यानी आने वाले 3 साल में लगने वाला पैसा, मीडियम टर्म 3 से 7 साल में लगने वाला पैसा, लॉन्ग टर्म 7 साल के ऊपर वाला लगने वाला पैसा. By doing so, subconsciously you are setting an alarm in your mind saying that if this particular amount will be reserved for this particular goal and I am not going to take it back. Okay? Okay? अगर आपको कभी टेम्पटेशन लगा और आप वो पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको रिकॉल कराएगा. दिस इज कॉल्ड मेंटल अकाउंटिंग इन साइकोलॉजी और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, और वो बहुत जरूरी है. और कि भाई पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बोल रहा था, जहां कहीं भी आप निवेश कर रहे हो ना, निवेश करने के पहले वो पर्टिकुलर एवेन्यू को ये 5 पैरामीटर पे कस के तोल के देखना है. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क व्हिच इज द रेगुलेटर, हु इज द रेगुलेटर. तो हमारे इंडिया में 5 रेगुलेटरी बॉडीज है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न. बैंकिंग डोमेन में आरबीआई, इंश्योरेंस डोमेन में आईआरडीए, पेंशन फंड डोमेन में पीएफआरडीए, इन्वेस्टमेंट डोमेन में सेबी एंड रियल एस्टेट में रेरा. इन अगर ये रेगुलेटर है तो आपको धोखाधड़ी भी हुई तो यू आर हैविंग वेरी मच राइट टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पार्टिसिपेंट एंड दैट पार्टिसिपेंट नीड टू एड्रेस टू द रेगुलेटर. सो सबसे बड़ी चीज, जिन प्रोडक्ट में रेगुलेटर नहीं है उससे हमें दूर रहना है. सेकेंडली यू नीड टू सी दैट कि व्हाट इज अ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी यानी मेरा पैसा मुझे कितने दिन, महीने, साल में वापस मिलने वाला है. Obviously, if you are looking for a short-term goal, you cannot lock your money for years. Okay, क्योंकि वो कभी भी आपको पैसा लग सकता है. But if you are looking for a long-term goal, तो obviously आप लॉक करने के लिए जा सकते हो. For example, हम PPF देखते हैं रिटायरमेंट के लिए. Likewise, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिस्क, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. Normally, what happens? We Indian people are highly emotional people. एंड किसी ने गारंटी रिटर्न बोला कि हमें आंख बंद करके पैसा देने का प्रचलन है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट गारंटेड रिटर्न इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या पीएसयू कंपनीज के बॉन्ड्स. ओके, उसके बाद जो भी कोई ऑफर कर रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है. वी नीड टू एक्सप्लोर दैट रिस्क फैक्टर. देन चौथा है रिटर्न. आप जो रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न उस प्रोडक्ट में से कितना मिल रहा है. वो रिटर्न जो होना चाहिए वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए. और इन्फ्लेशन यानी वो जो गवर्नमेंट बताता है वो नहीं, हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हिट करता है. हमने थोड़ी देर पहले देखा 6.5 to 7% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का रेट है. तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट 6.5-7% से ऊपर रिटर्न नहीं दे रहा है तो यू आर नॉट मेकिंग मनी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेशन. सो व्हाट इज द टैक्सेशन ट्रीटमेंट इन दैट प्रोडक्ट. इफ इट इज टैक्सेबल, post tax return should be over and above your long inflation adjusted return.
तो ये आपका होना चाहिए। अगर वो पोस्ट टैक्स रिटर्न 7-8% के ऊपर नहीं है तो यू आर नॉट मैचिंग विद द इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ इवन। नाउ हाउ शुड बी योर वेल्थ प्लानिंग, वेल्थ साइकिल पिरामिड। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इमारत उतनी ऊंची हो सकती है जितना स्ट्रांग उसका बेस हो। तो फाइनेंशियल गोल्स में, वेल्थ साइकिल में आपको पहला प्रेफरेंस उसको देना चाहिए लिक्विडिटी का। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब 3 से 6 महीने का घर खर्चा आपके पास 24 आवर्स में अवेलेबल रहे, ऐसा प्रोविजन करके रखना है। पहले लोगों को ये थोड़ा सा है ना हंसी की बात लगती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक पीपल केम टू नो दैट कि भाई 3 से 6 महीने का घर खर्चा रहना चाहिए, अदरवाइज वी नीड टू बोरो मनी, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी आ सकती है। देन सेकंड, ये कंप्लीट होने के बाद यू शुड गो फॉर कवरिंग योर रिस्क। तो एक व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस एंड होम इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यू शुड बाय इंश्योरेंस व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज व्हेन यू नीड इट नोबडी विल गिव इट। सो ये आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद देन यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके, सिक्योरिंग योर ड्रीम्स। उसमें भी आपको प्रायोरिटीज देना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज के जनरेशन में रहने वाला घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप प्रोविजन कीजिए। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट, उसके बाद होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन। थर्ड, आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए चिल्ड्रन एजुकेशन, उसके बाद चिल्ड्रन मैरिज, फिर एक आधा नया प्रॉपर्टी या नया कोई लग्जरियस चीजों की कलेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट। ऐसा करने से आप क्या करते हो कि यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि रिटायरमेंट के लिए लोग 50 या 52वें साल में चालू करते हैं, तब बहुत सारा वक्त निकल चुका होता है। आफ्टर securing your goals or done enough investment for your goal, then you should go for your legacy. Legacy यानी क्या, जिनके लिए कमाया उनको देके जाने का प्रक्रिया या प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड विल राइटिंग। बिकॉज जिनके लिए कमाया अगर उनको देके नहीं गया तो कमा के कुछ नहीं किया। Okay, so will writing gives you opportunity to distribute your wealth according to your wish. Then step 3 जो मैंने आपको बताया था, हम डिटेल में कवर करेंगे, मैनेजिंग योर रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के पहले आपको इंश्योरेंस कवर लेना है। ओके, तो सेफगार्डिंग योर योरसेल्फ, योर नियर एंड डियर फ्रॉम दिस 4 Ds। तो क्या क्या धोखे आ सकते हैं, तो अनटाइमली डेथ आ सकता है, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जो इंश्योर करता है कि मेरे बाद मेरे फैमिली वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आने वाले फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहिए। डिसीजेस हो सकते हैं, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा होता है कि भाई कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है या मेरा 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो इनफ है, लेकिन याद रखिएगा कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की एक्चुअल जरूरत 50-55 साल के बाद लगने वाली है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर मैं कंपनी में नहीं रहा या फिर मैं 50-55 साल में इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो कोई इंश्योरेंस कंपनी मुझे अवार्ड करने वाली नहीं है। एंड जो आज हेल्थ एक्सपेंसेस है वो 15-20 साल बाद इतने रहने वाले नहीं है। मेडिकल इन्फ्लेशन उसको बहुत ड्रास्टिकली अपवर्ड लेके जाएगी, तो आपका 3 लाख 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू एंड योर फैमिली आफ्टर 15 years डाउन द लाइन। देन थर्ड वन इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का डेफिनेशन इंश्योरेंस में किस तरीके से कहा गया है, एनी इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल मींस एंड नॉट द सेल्फ इंडक्टेड वन इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं होता है, फर्श पर से पैर फिसलना, सीढ़ी पर से गिरना इज आल्सो एन एक्सीडेंट। इन सच इंसिडेंट्स अगर मैं जिंदा रहा और परमानेंटली या टोटली डिसेबल हुआ तो मेरा मैं परिवार के ऊपर उल्टा बोझ हूँ। तो इन दैट सिनेरियो पर्सनल एक्सीडेंट विल कम इनटू पिक्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिजास्टर। तो बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी या फिर फायर या थेफ्ट या रॉबरी, इसकी वजह से अगर मेरे घर का या घर के बिलोंगिंग्स का कुछ अगर ये हुआ है तो वहां पे वो कवर अवॉर्ड करता है। तो बाय डूइंग सो व्हाट डिड यू डू, यू हैव प्रोवाइडेड अ संपूर्ण सुरक्षा फॉर योर फैमिली। अब आप निश्चिंत मन से आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज जब आप निश्चिंत मन से आगे बढ़ते हो तो आप लंबा जीते हो, टेंशन फ्री जीते हो। ओके, नाउ step 4, investing in a right asset class. Whenever you are investing, you should choose such a right asset class which will have a control over your lifestyle inflation. तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको फिगर याद रखना था, 2045 में अगर मुझे रिटायरमेंट लेना है और 3.75 करोड़ रुपीस चाहिए, अगर मैं 6% रिटर्न देने वाले एसेट क्लास में आज से निवेश करूं तो मुझे 55,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। अगर मैं वो 8% से निवेश करूं तो मुझे 40,000 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा, और मुझे 15% से निवेश करना है तो मुझे 13,000 निवेश करना पड़ेगा। नाउ
₹55,000 अगर आपका कैपेसिटी है तो यू शुड गो फॉर 6% काइंड ऑफ एसेट क्लास. But most of the middle class family will hardly find this much of amount to secure their peaceful retirement. तो मैंने क्या किया है कि wherever we can invest, तो उन एसेट क्लास का हमने एक ये दिखा है कि वे रिटर्न कितना आया है, that too for a longer period of time from March 1981 till March 2020. तो इस दरमियान मैंने इन्फ्लेशन भी लिया है कि 1 लाख रुपए जो 1981 में लगते थे चीजों पे खर्चा करने के लिए, सेम चीजें मुझे 2020 में खरीदना है तो 12,50,000 रुपए खर्चा करना पड़ता था. वही 1 लाख रुपए अगर मैं गोल्ड में डालता था और आज वो गोल्ड बेच देता था, तो I would have got 25,94,000. So over and above inflation, gold has made 2 times of money. सिल्वर में मैं वो पैसा डालता था तो सिल्वर का 1 लाख का आज होता था 14,53,000, यानी इट इज एट पार विद द इन्फ्लेशन. अगर मैं वो एफडी में, नेशनल बैंक के एफडी में डालता था तो 8.62% रिटर्न बनता था, यानी 1 लाख का 27,31,000, which would have given me 2 times over inflation. वही अगर मैं पीपीएफ में डालता था तो 9.41% से 36,49,000, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मुझे ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन करके देता था. और यही 1 लाख रुपए अगर 1981 में मैं सेंसेक्स में निवेश करता था तो 1 लाख का बनता था 1,70,00,000, which is 13.71%. इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार बेच के कल सेंसेक्स में डाल देना है. इसका मतलब ये है कि यू शुड चूज योर एसेट एलोकेशन एंड यू शुड इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस. सो आपने देखा कि इक्विटी इज अ राइट एसेट क्लास जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न बनाने का चांस है. तो इक्विटी में निवेश करने का एक वन ऑफ द सोर्स इज म्यूचुअल फंड. सो हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स वो हम थोड़ा सा देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे नए इन्वेस्टर हो सकते हैं. इमीडिएटली हम ये थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करेंगे. वी ऑल आर इन्वेस्टर, वी गिव दिस मनी टू द म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इन इंडिया एक्ट्स लाइक अ ट्रस्ट यानी विश्वास. इसके ऊपर जो रेगुलेटर है वो सेबी है. कल चल के हमारे लिए संपत्ति तैयार करने वाला है. संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एसेट. उसको मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है. उनके फंड मैनेजर एंड रिसर्च वर्कर अलग अलग मार्केट में स्टडी करके निवेश करते हैं. नॉर्मली कंफ्यूजन ये है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में लगाता है. ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड आपका पैसा गोल्ड मार्केट, डेट मार्केट, मनी मार्केट और अभी रीट्स भी आया है वहां पे भी निवेश कर सकते हैं. ओके, आपको 2 दिन के लिए भी निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड है, और 50 साल के ऊपर भी निवेश करना है तो अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है. एडवांटेज क्या है, जब आप खुद एक सिक्योरिटी में निवेश करते हो, शेयर्स या बॉन्ड में, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वो इंटायर शेयर में या बॉन्ड में जा सकता है. बट व्हेन यू गिव दिस मनी टू म्यूचुअल फंड, अ फंड मैनेजर विल इन्वेस्ट इनटू द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया. तो डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. देन लोग म्यूचुअल फंड से नाखुश क्यों रहते हैं? बिकॉज दे डोंट फॉलो द रूल. हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टाइम फ्रेम दिया है. वो टाइम फ्रेम आने तक के आपको निगेटिव, पॉजिटिव, वोलेटाइल कुछ भी रिटर्न आ सकता है. और जैसे ही आप वो टाइम फ्रेम क्रॉस करते हो तो आपको पॉजिटिव रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको 3 महीने के ऊपर का पैसा है तो आपने निवेश करना चाहिए. ओके, वही अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 5 साल के ऊपर का अगर पैसा है तो आपने निवेश करना चाहिए. 5 साल के अंदर निगेटिव, पॉजिटिव, वोलेटाइल कुछ भी रिटर्न आ सकते हैं. ये आपको देखने की तैयारी होनी चाहिए. अब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 5 इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल. ओके, आपको अगर लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश करना है तो इक्विटी का चुनाव मस्ट है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम देखेंगे. हमने थोड़ी देर पहले तो देखा ही था कि 15% से मुझे 13,000 रुपये महीना सेव करना पड़ता है. उसके पहले इक्विटी मार्केट कैसा काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्विटी यानी शेयर मार्केट, शेयर यानी हिंदी में हिस्सा. सो इफ यू मेक अ स्टेटमेंट दैट आई हैव बॉट अ 1000 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक, इसको मैं हिंदी रूपांतर अगर करूँ तो मैंने एचडीएफसी बैंक के 1000 हिस्से खरीदे. The moment I use this word हिस्सा, so I will be becoming a part of that company or owner of that company. और कोई भी ओनर जब बिजनेस चालू करता है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी देखता है. लॉन्ग टर्म में, मैंने टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, इट इज मोर देन 10 years एंड अबव स्टोरी. अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस का ग्रोथ देखोगे तो उतने ही परसेंट से बढ़ा होगा जितने परसेंट से उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़े होंगे. सो प्रॉफिट ड्राइव्स द प्राइस. एचडीएफसी बैंक का 10 साल से जो शेयर प्राइस बढ़ा होगा वो 21% से बढ़ा है. क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट भी 27% से बढ़े हैं. सो इट्स नॉट ओनली ट्रू टू द स्टॉक बट इट इज ट्रू टू
एंटायर इक्विटी मार्केट। तो ये जो सेंसेक्स का ग्रोथ है जनवरी 1991 टिल दिसंबर 2020, यानी ये 29 साल का जो इतिहास है वो ये बता रहा है कि भाई सेंसेक्स का जो ग्रोथ है वो 13.85% से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स के कंपनियों के मुनाफे भी इसी दरमियान ऑलमोस्ट 12% के पास या 11% के पास बढ़े हुए हैं। ओके, तो इट वैलिडेट्स प्रॉफिट ड्राइव्स द प्राइस। थोड़ा सा मैं आपको अगर सेंसेक्स का ग्रोथ बताऊं तो 1979 में 100 पॉइंट से सेंसेक्स चालू हुआ था। ओके, अगर किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया रहता था, आज 4 फरवरी को 2021 को सेंसेक्स क्लोज हुआ था 50,641, यानी 1 लाख का 5 करोड़ 6 लाख हुआ था। पिछले साल पैंडेमिक चालू हुआ था तो 31 मार्च को मार्केट नीचे गिरा था, 29,468 था, तब भी 1 लाख का 2 करोड़ 94 लाख बना रहता था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पेशेंस लूज करके निकल गया रहता था तो आज 1 साल बाद उसका जितना उसने रुका है उसका उतना ही लॉस 9 महीने में हुआ रहता था, या फिर वो अगर 9 महीने ज्यादा रुका रहता था तो 41 ईयर्स में जितना पैसा बनाया था उतना ही पैसा वो लास्ट के 9 महीने में या 10 महीने में बनाया रहता था। नाउ अगर आप रिटर्न वाइज देखोगे, बिकॉज ऑफ दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इवन इफ आपने 31 मार्च 2020 को पैसे निकाले रहते थे तो भी रिटर्न 14.87 बनता था, और आज अगर उसका मैं ये बात करूं तो इसका रिटर्न बनता था 16.05%। यहाँ पे डेट गलत है, 4 फरवरी होना चाहिए। तो ये 42 साल में इन शॉर्ट जो होना नहीं होना था ना वो आप याद कीजिए सब कुछ हो गया है। ओके, असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हुआ है, कारगिल वॉर हुआ है, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में चेंज हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर आया है, पैंडेमिक आया है, ग्लोबल क्राइसिस आया है। डिस्पाइट ऑफ दैट इंडियन इक्विटी हैज डिलीवर्ड यू अ डबल डिजिट रिटर्न। ओके, ये सेंसेक्स का जर्नी है। अगर आप जर्नी देखोगे तो जिगजैग है, लेकिन ट्रेंड देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो ट्रेंड अपवर्ड मूविंग ही है। तो ये बात हुई पास्ट की। ओके, अभी आपको अगर जानना है कि भाई इक्विटी मार्केट में मुझे अगर पॉजिटिव रिटर्न कमाना है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस बनाया है कि भाई अगर आप 1 साल के लिए रुकते हो तो कोई 1979 से 2020 आपने पैसा डाला, 1 साल निकाला, 81 में पैसा डाला, 82 में निकाला, you could have done it for 41 times. Okay, out of 41 times आपको 14 times you would have faced negative return, यानी 1/3 times you have faced the negative return. बट जैसे जैसे आप अपना होराइजन बढ़ा रहे हो होल्डिंग का, आपका नेगेटिव रिटर्न आने का चांसेस कम होते जा रहा है। एंड फॉर अ 15 ईयर पीरियड अगर आपने 1979 में पैसा डाला, ओके, 94 में निकाला, ओके, या फिर 80 में डाला, 95 में निकाला, ऐसा आप 27 बार कर सकते थे, एंड नन ऑफ द टाइम यू हैव फेस्ड अ नेगेटिव रिटर्न। सो दिस इज व्हाट इक्विटी ऑल अबाउट। जितना लंबा समय आप रखोगे उतना आपको नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस कम रहेंगे। और ये तो नॉर्मल मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड विल बी फार बेटर देन दिस। ओके, और अपने कोई भी लाइफ के जो गोल है वो अगर आप देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपना रिटायरमेंट, वो अगर 10-15 साल के बाद है तो आप इक्विटी का चुनाव कर सकते हैं। ये हो गया पास्ट का। व्हाट अबाउट फ्यूचर? ओके, सो अगेन बैक टू बेसिक्स कि भाई कंपनी के शेयर प्राइस कब बढ़ेंगे? जब कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में। कंपनियों के प्रॉफिट्स कब बढ़ेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि मारुति कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ेगा? जब मारुति कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। मारुति कंपनी के प्रॉफिट्स कब बढ़ेंगे? जब उसके सेल बढ़ेगा। सेल कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास मारुति कार लेने की क्षमता आएगी। वो क्षमता कब बढ़ती है? जब लोगों के अर्निंग्स बढ़ेंगे। अर्निंग कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और एक देश में या एक कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कब बढ़ती है? जब उस देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हो। तो अपने भारत में आज 25 से 45 ये उम्र की 54% अबव जनता है। तो आप याद कीजिए कि यंग पॉपुलेशन क्या करती होगी जब पहला सैलरी मिलता है। आपने और हमने क्या किया था जब अपना पहला सैलरी मिला था? तो हमने अपने माता पिता के लिए कोई गिफ्ट लिया होगा, कपड़े लिए होंगे, अपने लिए शूज, मोबाइल, लैपटॉप, वॉच, घड़ी, घर, गाड़ी, कुछ ना कुछ लिया होगा। तो इन चीजों की डिमांड की होगी, डिमांड की तो प्रोडक्शन बढ़ा होगा, प्रोडक्शन किया होगा तो कंपनी का सेल हुआ होगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और ये जो साइकिल है वो आने वाले 10-15 साल तक रहेगी, जब तक कि यंग पॉपुलेशन, एजड पॉपुलेशन नहीं होता है।
तो दिस इज व्हाई शेयर प्राइस विल गो इन अ लॉन्ग रन। थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल वर्जन बताता हूँ और ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम दिन भर 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के क्या क्या लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उसके बारे में हम देखते हैं। और आप ये देखिएगा कि ये दिन ब दिन इसका कंजम्पशन बढ़ेगा कि कम होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 6 बजे हम उठते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, कोलगेट या पेप्सोडेंट से, तो कोलगेट या एक्चुअल का हम ये यूज करते हैं पेप्सोडेंट। ओके, देन शेव करना है तो जिलेट का शेवर और शेविंग क्रीम यूज करते होगे। फिर हम ना बाथरूम में जाते हैं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शैम्पू या फिर साबुन यूज करते होगे। देन अपना ऑफिस की तैयारी करते हैं तो लुई फिलिप का या वैन हुसैन का शर्ट पहनते हो गया, यानी आदित्य बिरला फैशन हो गया। फिर बाटा का शूज पहन के हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, वहां पे कौन सा सिम होता होगा, एयरटेल, भारती या आइडिया का। फिर हम टू व्हीलर पे जाते होंगे तो टीवीएस, बजाज या हीरो का टू व्हीलर होगा। अगर फोर व्हीलर पे जाते होंगे तो मारुति सुजुकी का फोर व्हीलर होगा। रास्ते में हम पेट्रोल भरते होंगे तो एचपीसीएल, बीपीसीएल या एमएनजीएल या रिलायंस का पेट्रोल पंप यूज करते होंगे। फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गोज फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, तो एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस में काम करती होगी। और जो बाकी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते होंगे उनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एलएनटी कंस्ट्रक्शन में किया होगा। फिर हम ऑफिस में बैठने के बाद कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में अगर चाय पी रहे होगे तो ब्रूक बॉन्ड का चाय पी रहे होगे, या आईटीसी का बिस्किट खा रहे होगे, पार्ले ब्रिटानिया का। खाना खा रहे होगे तो खाना जो आता है वो टाटा के ट्रक में या आयशा के ट्रक में या महिंद्रा के ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान आता होगा। ओके, इन द मीन टाइम आपको याद आया कि आपकी गाड़ी का सर्विसिंग या ऑयल चेंज करना है या टायर चेंज करना है तो कैस्ट्रॉल का ऑयल, अपोलो या एमआरएफ का टायर चेंज करते होगे। फिर शाम में जब हम अपने कुरियर सेंड करते हैं तो उसको एडिसिव पीडीलाइट का लगाते हैं और ब्लू डार्ट के कुरियर में उसको भेजते हैं। फिर शाम में ऑफिस से निकलने के बाद कैफे कॉफी डे में हम चाय की या कॉफी की चुस्कियां मारते हैं और क्रिसिल का साइड देखते हैं कि कि कितना कौन सा शेयर बढ़ा, कौन सा घटा। ओके, जब घर में आते हैं और घर में जो हमारा घर भी सीमेंट और ईट रेती से बनता होगा तो अंबुजा सीमेंट लगता होगा। लाइट नहीं है ये देखते हैं तो कमीज का अपना ये चलाते होंगे अपना पावर बैकअप के लिए। फिर अभी पैंडेमिक है तो हमें फिर से हाइजीन फैक्टर के लिए अपने कपड़े धोने में डालने पड़ते हैं, तो वॉशिंग मशीन या वर्लपूल के वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते होंगे। फिर रात में टीवी देखते होंगे तो डिश टीवी हम देखते हैं। किसी अभी जैसा मैंने बताया कि भाई फिर से अपने को बात लेना पड़ता है तो फिर से शैम्पू और वो साबुन वहां पे लग गया। रात को किसी लोगों को यूनाइटेड स्पिरिट का तरल पदार्थ पीने की आदत हो सकती है, या फिर रात को खाना खाने के बाद बीपी या डायबिटीज की गोलियां जो 8% खाते होंगे और यूपी या सिप्ला से खाते होंगे। और सोते वक्त वोल्टास या कॉन्स्टेंट व्यूज के फैन में पावर ग्रिड के सप्लाई वाले इलेक्ट्रिसिटी में हम सोते होंगे। अब आप बताइए कि दिन भर में हम इतने लिस्टेड कंपनियों का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये आगे चल के कम होगा कंजम्पशन की बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो हो सकता है कि कंपनीज कुड बी डिफरेंट बट कंजम्पशन विल नॉट बी चेंज। ओके, तो यही अपने को स्टोरी मालूम करनी है कि क्यों इक्विटी में ये रिटर्न बनेगा। अगेन स्टेप 6, स्टार्ट सेविंग अर्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्ट सेविंग अर्ली। ओके, पीसफुल रिटायरमेंट के लिए अगेन हमें वो 3.75 करोड़ रुपीज चाहिए 25 साल बाद। अगर मैं 10% एसेट क्लास में डालूं तो आज से अगर 2020 में मुझे निवेश करना है तो 30,000 रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा। बट मैंने आलस दिखाया है, डिलेड दैट इन्वेस्टमेंट बाय 10 ईयर्स, तो 2030 में अगर मैं निवेश करना चालू करूं तो मुझे उसका 3 टाइम्स ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। और यही अगर मैंने 10 साल और डिले किया तो मुझे रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 5 साल बाकी है, तब मुझे 90,000 रुपीज नहीं 4,85,000 रुपीज पर मंथ डालने पड़ेगी। ठीक है, 30,000 कहाँ और 4,85,000 कहाँ। इसीलिए प्लीज प्लीज स्टार्ट अर्ली। इसका एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग अर्ली का, तो वॉरेन बफेट का एग्जांपल ढूंढ के नहीं मिलेगा। He started his investment at the age of 13. Okay, आज 88 ईयर के वो हो चुके हैं और 85 बिलियन नेट वर्थ है उनका। ऑलमोस्ट 40% जो वेल्थ है वो लास्ट के 5 साल में क्रिएट हुआ है। और आपका अगर ये देखा जाए तो 16 साल में ऑलमोस्ट 131% वेल्थ लास्ट के 16 साल में क्रिएट हुआ है। तो क्यों? क्योंकि उनको 75 साल का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है। So the longer you save, the more you make.
ओके, तो आपको बिग स्टॉक्स या ये चुनने की जरूरत नहीं है। इफ यू गिव इनफ टाइम एंड इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका पैसा बनते जाएगा। लाइव एग्जांपल इज हियर। स्टेप 7, इन्वेस्टिंग रेगुलरली। ओके, अगर आप म्यूचुअल फंड का ये कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग रेगुलरली थ्रू एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में से एक फिक्स तारीख को फिक्स रकम म्यूचुअल फंड द्वारा इसमें निवेश होती है ना। उसका फायदा क्या है, तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए साइकिल दिखाई है। मार्केट फॉल हो रहा है, फिर मार्केट राइज हो रहा है, और ये एनएवीज है, अगर आप देख पा रहे होगे तो 25 रुपए के एनईवी पे अगर आप 10,000 रुपया महीना निवेश कर रहे होगे, दीज आर द मंथ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आपने 400 यूनिट खरीदे। जैसे एनईवी नीचे गिरी, आपने ज्यादा यूनिट खरीदे, और एनईवी नीचे गिरी, आप ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो। आप यही चाहते हो कि जब मार्केट नीचे गिरे तब मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपने कम यूनिट्स खरीदे, बराबर। तो दिस इज एक्चुअली हैपन इन दी एसआईपी। और आपने टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट कितने किए पूरे ये 11 महीने में, 5,987, यानी टोटल 11 लाख में 5,987, यानी आपका एक यूनिट पड़ा आपको 18.37। जबकि आज यूनिट की प्राइस क्या है, मार्केट वही का वही है, 25 का 25। बट आपकी एसआईपी का क्या हुआ है, 1,10,000 का 1,50,000 होगा। सो एक्चुअली एसआईपी डज व्हाट यू वांट, कि राइजिंग मार्केट में कम यूनिट खरीदना, फॉलिंग मार्केट में ज्यादा यूनिट खरीदना। So average cost per unit will be always lesser than average purchase price per unit. Okay, so this is what SIP does it for you. फिर से वही कि एसआईपी में अगर आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं पाना है तो क्या करना चाहिए, तो एक एनालिसिस डीएसपी म्यूचुअल फंड ने किया था, वही मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। कि भाई अगर आपने 1979 से लेके 2020 तक के सेंसेक्स में ही एसआईपी की रहती थी तो क्या रिजल्ट मिलता था। तो अगर आपने कोई भी एक साल के लिए एसआईपी की तो इन दिस पीरियड 100 में से 29% टाइम आपको नेगेटिव रिटर्न का सामना फेस करना पड़ता था। But the moment you have increased the horizon for SIP for 15-year period, none of the time you have on the negative return. In fact, 12-year period में भी 80% है, but 15 year में तो वो जीरो ही है। And at the same time 95% टाइम आपका रिटर्न 12% के ऊपर आया है। और मैं ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक स्टेप आगे रह सकते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, तो आपके गोल्स, जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपना रिटायरमेंट, ये 10 साल के ऊपर आने वाले हैं, तो आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी का चुनाव करना चाहिए। एंड पहले 5 साल एसआईपी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक आदित्य बिरला सनलाइट इक्विटी का 1999 सितंबर में अगर आपने 10,000 रुपए एसआईपी किया रहता था तो 20 साल हुए रहते थे अभी तक के। 20 साल में 240 महीने में 24 लाख रुपए इन्वेस्टेड, 24 लाख का 1,82,00,000 रुपीज हुआ है। आप पहले एक देखिए कि जैसे जैसे आपका एसआईपी ओल्ड हो रहा है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट वैल्यू का गैप बढ़ रहा है। यहाँ पे वो 4,000 का था, यहाँ पे सीधा वो ऑलमोस्ट 1,60,00,000 का हो गया। ओके, तो ये बढ़ गया। दूसरा कि 20 सालों में आपने कितने यूनिट्स खरीदे, 26,951। बट अगर आप पहले 5 साल की यूनिट देखोगे तो 19,143, विच मीन्स 65% ऑफ द यूनिट्स ऑफ 20 इयर्स एसआईपी आपने पहले 5 साल में ही खरीद ली। बट पहले 5 साल में क्या होता है, आपको नेगेटिव रिटर्न का सामना करना पड़ सकता है। तो बाय डूइंग सीइंग दिस नेगेटिव रिटर्न, बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, दे स्टॉप द एसआईपी। इफ दे स्टॉप द एसआईपी, इसका मतलब जो 65% यूनिट एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया। वो स्टॉप हो गया, आपने ये 2 साल भूल गए और 18 साल भी रुके रहे तो भी आपका रिटर्न 17% नहीं बनेगा, अब वो 7% बनेगा। तो उससे बड़ा ट्रेजेडी क्या होगा, you have given the time for equity that to 18 years and you have earned a return like a day because you have missed those 2 important years and you don't know in this investment cycle which will be those 2 years, but obviously it will come into the first 5-7 years. Okay, तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपको बीच में अरे आपको अभी एसआईपी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यस आई वांट टू डू एसआईपी। ओके, सो दैट आवर डिस्ट्रीब्यूटर विल कांटेक्ट यू। ये एसआईपी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी जो स्कीम्स है ऑल पुट टुगेदर, उनका एवरेज रिटर्न है, तो पिछले 15 साल का रिटर्न है। ओके, अगर किसी ने 25-25 हजार रुपए निवेश किया रहता था तो 180 महीने में आपने 45 लाख रुपए निवेश किए रहते थे।
ये 45 लाख रुपए का एवरेज रिटर्न कितना बना है? 1,48,00,000 रुपए। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। ओके, वही अगर BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स में अगर देखो तो 12% बना है। तो ये SIP ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज अ ट्रू वेल्थ क्रिएटर। थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। Then step 8, which is very much important, always following the principle of asset allocation if you are investing into lump sum. ऐसा कहा जाता है कि आपको इक्विटी में कितना निवेश करना है, कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन एक ऐसा कहते हैं कि भाई 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ओके, एट लीस्ट, यानी अगर मेरा उम्र 25 साल है तो 100 माइनस 25 यानी 75% ऑफ माय सेविंग शुड गो इनटू इक्विटी। अगर मेरा उम्र 60 साल है तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40% ऑफ माय सेविंग शुड गो इनटू इक्विटी। तो जैसे जैसे मैं यंग एज से ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ, मेरा इक्विटी एलोकेशन में कम कर रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है मेरा रिस्क लेने का जो ये है एपेटाइट वो कम हो रहा होगा। और ये एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग अगर आप फॉलो करते हो लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यार हमेशा अपने सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखते हो। कैसे? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप क्लाइंट ए हो, मैं क्लाइंट बी हूँ, हम दोनों के पास 10-10 लाख रुपया था, हमने 50-50% करने की ठानी, और हर एक कैलेंडर ईयर में जब 1 जनवरी आएगी तब जो भी अमाउंट होगा उसका हम 50-50% करेंगे, ऐसा डिसाइडेड किया था। तो 10 लाख रुपए का 50-50% यानी 5-5 लाख हो गया। कैलेंडर ईयर 2007 में लकीली 62% इक्विटी ने रिटर्न दिया, तो हम दोनों के 5 लाख के हो गए 8,10,000 दोनों के। एंड यहाँ पे 5 लाख का 8% एफडी काइंड ऑफ रिटर्न होगा तो 5,40,000, हम दोनों के बने 13,50,000। Now you being a disciplined investor, आपने क्या किया? 1 जनवरी 2008 को जो अमाउंट था उसका 50-50 कर दिया, तो कितना हो गया? 6,75,6,75। क्या करना पड़ा उसके लिए? ये 8,10,000 का 6,75 करना है तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ा। ओके, और आपने वो प्रॉफिट बुक किया और वो घर में नहीं लेके गए, वो अपनी डेट में ट्रांसफर किया। मैंने लालच के मारे आई केप्ट द सेम अमाउंट एज इट इज, आई डिडंट डू एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। Then for calendar year 2008, because of the global crisis, market tumbled down by 57%. तो आपका जो हिट हुआ होगा वो 6,75,000 पे हुआ होगा, मेरा हिट जो हुआ वो 8,10,000 पे हुआ होगा। बट जबकि जो आपके 8% बढ़े होंगे वो 675 पे बढ़े होंगे, मेरे खाली 540 पे बढ़े होंगे। तो आपका क्या होगा इस प्रोसेस में? आपका पैसा कम अमाउंट पे गिरा और आपका पैसा ज्यादा अमाउंट पे बढ़ा एज कम्पेयर टू मी। ओके, तो फिर आपका वैल्यू कितना हो गया? 2,90,000 प्लस 7,29,000, 10,19,000। मेरा कितना हो गया? 9,31,000। ओके, नाउ अगेन व्हाट डिड यू डू? उसका जो भी अमाउंट होगा उसका 50-50% करने की आपने ठानी, तो उसका 5,09,000 हो गया। तो 2,90,000 का 50%, सॉरी 10,19,000 का 50% कितना होगा? 5,09,000, बट है कितना? 2,90,000। तो आपको एडिशनल पैसा डालना है, वो आप अपने जेब से नहीं डालोगे, ये 7,29,000 का कम करके इधर ट्रांसफर कर दोगे। मैंने वैसा का वैसा ही रखा। नाउ फॉर कैलेंडर ईयर 2009 88% रिटर्न आया, तो आपका इक्विटी पे रिटर्न 5,09,000 पे आया होगा, मेरा 3,48,000 पे आया। तो टोटल प्रोसेस में आपका 10 लाख का बना 15 लाख और मेरा बना खाली 12,75,000। अब इसमें कहीं हमने बताया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, या आप ए स्कीम में डालो या बी स्कीम में डालो। आपने क्या किया? मार्केट ऊपर था तब भी 50-50, मार्केट नीचे था तब भी 50-50। यह जो इन्वेस्टर करता है वो कंप्लीट मार्केट साइकिल में हमेशा मार्केट से ऊपर रिटर्न कमाएगा, और ये हम करने की कोशिश करते हैं इन अ कांसेप्ट कॉल्ड मार्स। मार्स स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग सिस्टम, जहां पे आप अपने रिस्क एपेटाइट अनुसार एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए स्कीम सिलेक्शन करेंगे और पीरियोडिक रिबैलेंसिंग उसका पोर्टफोलियो एक फिक्स इंटरवल पे या डायनामिकली भी वो कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं रिटर्न की बात करूं, ओके, तो सिंस इंसेप्शन यानी 16 दिसंबर 2013 से हमने इसको चालू किया था, टिल डेट 31 जनवरी 2021, उसका रिटर्न आया है 15%, और मार्केट का भी रिटर्न आया है 14.19%। जबकि मार्केट का रिटर्न जो आया है वो 100% इक्विटी एक्सपोजर लेके आया है, और ये जो 14% या 15% रिटर्न आया है वो 47% इक्विटी एक्सपोजर लेके आया है। तो आपको तय करना है कि 100 की स्पीड से लेके मुझे 3 घंटे में पुणे से मुंबई पहुंचना है, या फिर 80 का स्पीड लेके या 60 का स्पीड लेके मुझे 3.25 घंटे में या 3 घंटे में पुणे से मुंबई पहुंचना है। बिकॉज आप दोनों केस में 3 ही घंटे में पहुंच रहे हो, लेकिन 100 की स्पीड से आप पहुंच सकते हो या पहुंच नहीं सकते हो,
60 के स्पीड से चांसेस ज्यादा है आप पहुंच सकते हो। एंड एसेट एलोकेशन एग्जैक्टली डज इट फॉर यू, आपका वोलाटिलिटी वो कम कर देता है। अभी जेएफएम, अभी जनवरी फरवरी मार्च का सीजन चालू है, तो आपका ईएलएसएस सॉरी आपका टैक्स सेविंग का ये चल रहा होगा, महीने चल रहे होंगे, तो टैक्स सेविंग के लिए अंडर एटीसी 1.5 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हो। उसके लिए कहाँ कहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, तो पीपीएफ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक एफडी है, और म्यूचुअल फंड का एक ईएलएसएस स्कीम होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहाँ पे 3 साल का लॉक इन होता है, जो सबसे कम लॉक इन वाला है। और रिलेटिवली 2019 में हमने देखा था तो रिटर्न भी उसके अच्छे बने थे। ओके, टैक्स ट्रीटमेंट भी यहाँ पे बताया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के ऊपर म्यूचुअल फंड में लग सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो एक छोटा सा मैंने एनालिसिस मंगवाया था बिरला से, और उन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे बताया है कि भाई 1996 से जो आपका मैक्सिमम अंडर एटीसी का पीपीएफ का लिमिट था वो आप एग्जॉस्ट करते थे, यानी तब 70,000 रुपीज एक टाइम के ऊपर आप डाल सकते थे, आपने वो डाला रहता था। 2013 में वो लिमिट 1 लाख करके दिया था, 2015 में वो 1.5 लाख करके दिया था। तो ऐसा टोटल फ्रॉम 1996 टू 2020 आप टोटल 24,40,000 रुपए आप निवेश करते थे। ये 24,40,000 का पीपीएफ में बनता था 67,15,000, जबकि यही पैसा अगर आप ईएलएसएस में डालते थे तो उस 24,40,000 का बनता था 4,52,00,000। आपके पीपीएफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4.25 करोड़ ज्यादा बनते थे और कुछ नहीं होता था। मैं ये कहता हूँ कि 50% पीपीएफ में डालते थे, 50% ईएलएसएस में डालते थे, तब भी आपका यहाँ पे हाफ बनता था 32.5 लाख, और यहाँ पे आपका हाफ बनता था 2.25 करोड़। तो आपका टोटल बनता था 2,57,00,000। ओके, तो आपका 24,40,000 का 67 लाख बना, 2,57 लाख बना, या 4,52,00,000 बना, ये किस पे डिपेंड रहा, आपने कितना इक्विटी और कितना डेट पे डाला। अगेन एसेट एलोकेशन, बिकॉज आप उतने ही साल निवेश करते रहे, उतना ही अमाउंट निवेश किया, उतना ही टैक्स बचाया, लेकिन मैच्योरिटी का अमाउंट एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिफरेंट रहता था। स्टेप 9, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने गोल के लिए, तो एट द सेम टाइम उसको रिव्यू करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, कि आप उस गोल के कितने करीब पहुंचे हो, तो आपको ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर देखा जाए तो इस इन्वेस्टर का 2040 में रिटायरमेंट लेने का गोल है, जहां पे 5,40,00,000 है। उन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 1.76 करोड़ होने वाला है, 13% काइंड ऑफ रिटर्न। अब उसका गैप जो दिख रहा है 3,64,00,000, वो ब्रिज करने के लिए एडिशनल 24,000 का एसआईपी डालना पड़ेगा, या 22 लाख रुपए का लमसम डालना पड़ेगा। जब आप ये देखते हो तो आपका मेंटल अकाउंटिंग का जो पार्ट है माइंड में एक्टिवेट रहता है, और आप मार्केट को नहीं देखते हुए अपने गोल के ऊपर फोकस करते हो, और ये गोल को कितने जल्दी पूरा किया जाए, ओके, उसके लिए आप क्या करते हो, अपना सेविंग बढ़ाते हो। एंड दैट शुड बी दी राइट वे फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट। Again, because of this pandemic, people got the importance of digital platforms. Okay, digital payment, digital investment, सब कर रहे हैं। तो we are having a facility wherein you can invest in our through you can invest in mutual fund through our platform, जहाँ पे आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, कहीं पे भी, यानी आप अपने सिटी में हो, सिटी के बाहर हो, देश के बाहर हो, रात को दिन को कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। लाइकवाइज फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर। एंड स्टेप नंबर 10 जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। अगर आप अपना खुद का घर अपने खुद से बना नहीं रहे हो, आप अगर अपना इंटीरियर घर का खुद डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के बाल खुद नहीं काट रहे हो, आप अपना खुद का कोर्ट केस खुद नहीं लड़ रहे हो, तो फिर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट आप क्यों कर रहे हो, ये आपको पूछना है। बिकॉज इट इज एज गुड एज योर फाइनेंशियल हेल्थ, एंड फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी एक प्रोफेशनल की जरूरत है। तो ये वर्ल्ड के रिनाउंड एडवाइजर है, या वन ऑफ द फेमस पर्सन जो निक मरे जी है, वो ये कहते हैं कि उम्र के एक पड़ाव के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपने कितना पैसा कमाया, ये आपकी स्कीम में कितना रिटर्न दिया इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, जबकि आप उस स्कीम में किस तरीके से इन्वेस्टेड रहे इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। और आप उस स्कीम में किस तरीके से डिपेंडेंट रहे, ये आपको किस टाइप का
क्वालिटी एडवाइस आपको मिला है वो तय करता है, और वो क्वालिटी एडवाइस देने वाली कोई वेबसाइट या कोई मैगजीन नहीं हो सकती, वो एक पर्सन हो सकता है, हम उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो आपके गोल के ऊपर फोकस करता है, प्लान करता है कि भाई 2040 में 5 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए आपको 24,000 का एसआईपी करना है। मार्केट ऊपर रहे, मार्केट नीचे रहे, तब भी मैं 24,000 का एसआईपी इनसे करवाऊंगा, और ना कि यूएस चाइना का क्या होगा, इंडिया चाइना का क्या होगा, ये देख के मैं मार्केट का दिशा तय करूंगा, एक इन्वेस्टमेंट तय करूंगा। बिकॉज ये होने के बाद भी 2040 में उस इन्वेस्टर को 5 करोड़ 40 लाख रुपए तो लगने हैं। सो दिस इज द कोच जो करवाता है। अल्टीमेटली जो हमने देखा, क्या देखा हमने कि भाई और इन्वेस्टर कैन कंट्रोल, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? देयर आर टू फैक्टर, आप जो कंट्रोल कर सकते हो, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी फैक्टर में क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है ना, जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर फोकस रहता है। फॉर एग्जांपल, आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हो एसेट एलोकेशन से, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, टाइम कंट्रोल कर सकते हो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल बेस्ड प्लानिंग से, बिहेवियर कर सकते हो एसआईपी से। ये सब आपके हाथ में है। रिटर्न आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल फोकस ऑन द रिटर्न, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो समरी जो मैंने ये 10 पॉइंट कवर किए थे, उसका यही है कि भाई फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इनकम माइनस सेविंग, ये फॉलो कीजिए। बचे हुए पैसा, सेविंग करने के बाद बचे हुए पैसे का स्पेंड कीजिए। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले इंश्योरेंस प्रॉपर कवर लीजिए। देन एसेट क्लास ऐसा चुनिए जो महंगाई के ऊपर हो, पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म गोल के लिए। इक्विटी का जब चुनाव करते हो तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही आपको चुनाव करना है। जितने जल्दी चालू कर सकते हो उतने जल्दी चालू कीजिए, यानी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्ट रेगुलरली कीजिए एसआईपी, सो दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स अप एंड डाउन एंड हैविंग अ एवरेज रुपी कॉस्ट बेनिफिट। देन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एसेट एलोकेशन, वो इम्पोर्टेंट है। देन रेगुलरली रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल नीड्स, आप अपने गोल्स के पास कितने पास पहुंचे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप निवेश कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का सलाह लीजिए। ये हमारा ये रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हो। इन द मीन टाइम आपको लगता है कि आपको एसेट एलोकेशन में निवेश करना है, तो आप एसेट एलोकेशन का एस आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट आप ये लिख सकते हो। एस आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू एसआईपी ये लिख सकते हो, या यस आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू ईएलएसएस ये भी लिख सकते हो, सो दैट आवर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू। यस अशीम, एनी क्वेश्चन? Yeah, yes, sir. First of all, there is a hello. Yeah. So बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थैंक यू मैसेजेस हैं, और काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली फॉर द रिटायरमेंट एंड प्लानिंग। तो मिक्स क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को एक साथ बांधने की कोशिश की है रिटायरमेंट से रिलेटेड। सो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली रिटायरमेंट के अगर कोई नजदीक है और या फिर उसके पास समय कम है, तो वो रिटायरमेंट का कॉर्पस कैसे मैनेज किया जाए, ए। उसके साथ बी क्वेश्चन, हम क्या हम रियल स्टेट को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं रियल रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए या रिटायरमेंट इनकम के लिए? तो पहला तो आप जब रिटायरमेंट के करीब हो तो आपको पहला तो एसेट एलोकेशन पे प्रायोरिटी करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड अर्लियर आल्सो, कि आपने कोई आपका एफडी किया होगा, म्यूचुअल फंड किया होगा, शेयर होगा या रियल एस्टेट होगा, आपका कुछ ना कुछ कॉर्पस आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसका एसेट एलोकेशन प्रॉपर करना है, बिकॉज आपके रिटायरमेंट पर्पस के लिए आपको कितना रुपए की आवश्यकता लगेगी ये आपको मालूम है। ओके, या महीना कितना रुपए लगने वाला है। बेस्ड ऑन दैट योर डिस्ट्रीब्यूटर कैन गिव यू इंसिडेंटल एडवाइस कि भाई आपको क्या करना चाहिए, ओके, या कहाँ पे आपको निवेश करना है उनको बता सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपना रिस्क एपेटाइट भी देख सकते हो कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, यानी मेरा पैसा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैं कितना नीचे जाते हुए देख सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट आपको मालूम पड़ेगा कि इतना इक्विटी में आपको जाना चाहिए, एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड इफ समथिंग हैपेंस टू योर मनी, तो इतना पैसा नीचे गिरा तो भी आप इम्पेशेंट नहीं होगे। ओके, तो आप वहां पे ये कर लीजिए, पहले तो अपना रिस्क एपेटाइट देख लीजिए और एसेट एलोकेशन अकॉर्डिंगली आप ये उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। अभी
रिस्टोर करना पड़ेगा. Then real estate, yes, you can look for the real estate also as an option, but आपको ये वे करना पड़ेगा कि भाई आपके पास कितना liquidity available है. अगर आपके liquidity need ज़्यादा है, तो real estate is not the liquid asset. ठीक है? आपके पास liquidity enough है, then you can go for a real estate also as a rental income. But rental income अगर आप देख रहे हो तो 2-3% से होगा और उसके साथ appreciation अगर नहीं आ रहा होगा, तो बेटर है कि आपके पास लिक्विडिटी भी है, एप्रिसिएशन भी है एंड आपका ग्रोथ रेट अगर अच्छा आपको दिख रहा होगा तो यू शुड बेटर स्विच टू दी म्यूचुअल फंड्स. तो ये आप अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके देख सकते हैं. यस अश्विन. अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग रिटायरमेंट ही है कि मेनी ऑफ द पीपल वांट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट, लेकिन उनको ये जानना है कि रिटायरमेंट के लिए कितने रुपए की, कितना अमाउंट की एसआईपी या लमसम से इन्वेस्टमेंट करें, और वो कैलकुलेशन उनको समझना था, इसलिए उन्होंने काफी क्वेश्चन डिटेल लिखा है. तो उस पे आपका कुछ व्यू आप दे सकते नहीं सर, उसमें आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इन्वेस्टर वाइज आई डोंट नो कितने सामने मेरे पास इन्वेस्टर्स है और किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, तो हर एक का नीड अलग अलग हो सकता है. आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आप अपना खुद का मंथली खर्चा कितना आपका है वो बताइए, आपको रिटायरमेंट होने के लिए कितने साल बाकी है वो बताइए, कितने साल तक का अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखना है, यानी वो पोस्ट रिटायरमेंट गोल का ये रखना है एज, वो आप रखिए. ओके, बेस्ड ऑन दैट इन्फ्लेशन के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके देंगे कि इतना कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए, जो पोस्ट रिटायरमेंट आप इतने इतने परसेंट से रखेंगे तो भी टिल द लास्ट ब्रेक आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रख पाओगे. ये कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है. केस टू केस बेस डिफर हो सकता है, सो वी कैन नॉट कवर इट फॉर ऑन ओपन फोरम. आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर जिनने आज आपको इनवाइट किया है उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. आप उसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन राइट इट इन अ कमेंट कि यस आई वांट टू डू रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको कांटेक्ट कर लेंगे. यू नीड नॉट हैव टू कांटेक्ट इवन, दे विल कांटेक्ट यू अकॉर्डिंगली आफ्टर सीइंग दिस कमेंट. अश्विन. यस सर. सो एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों ने पूछा है कि हम एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी के लिए बेस्ट स्कीम, बेस्ट सिक्योरिटी या बेस्ट शेयर कौन सी है वो सजेस्ट कीजिए. तो सर इस पे आपका ओपिनियन. Sorry. स्कीम सिलेक्शन के ऊपर actually in the beginning of the presentation, I forgot to give this disclaimer, clause rather, कि भाई अगर आप आज इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कौन सा बेस्ट स्कीम, बेस्ट स्टॉक या बेस्ट सेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप डिसअपॉइंट होगे, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. मैं इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि एनी स्कीम, एवरेज परफॉर्मिंग, गुड परफॉर्मिंग, ओके, डाइवर्सिफाइड स्कीम, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन, अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हो तो विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और आपके अबव एवरेज रिटर्न आ सकते हैं. ओके, बट आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है. जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो प्रेजेंटेशन में बताया कि भाई पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉर्मली पहले 5 साल में इक्विटी मार्केट का ऊपर नीचे चढ़ाव देखने के बाद इन्वेस्टर डर जाते हैं और एसआईपी बंद करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच वी कैन कमिट. ओके, तो वो अपने को अवॉइड करनी है. इफ यू कंटिन्यू योर एसआईपी तो पहले 5 साल में आप 50 से 65% ऑफ टोटल यूनिट तो आप लेने वाले हैं. ओके, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल सकते हैं कि जो भी स्कीम पिछले 20 साल में अस्तित्व में है, आई एम श्योर दे आर हैविंग दिस डेटा अवेलेबल विद देम, तो आपको दिखाएंगे कि 25 स्कीम अवेलेबल थी. 25 स्कीम में भी जो आपका ये था 1999 टू 2019 का डेटा, 20 साल के इसमें वर्स्ट रिटर्न देने वाली स्कीम ने भी 10.14 का रिटर्न दिया था, डबल डिजिट रिटर्न. Okay, so don't run behind the best performing scheme or best performing sector, because हर एक स्कीम का और हर एक सेक्टर का साइकिल होता है. हर एक सेक्टर को, स्कीम को अप एंड डाउन फेज से जाना ही पड़ता है. तो एसआईपी क्या करता है, आपको उस स्कीम के अप एंड डाउन में इन्वेस्टेड रखता है, अगर प्रोवाइडेड इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So scheme doesn't matter as far as SIP is concerned for long period. अश्विन जी. एक दूसरा क्वेश्चन है अबाउट टैक्स सेविंग.
So somebody want to know ki what is the minimum amount I can invest in mutual fund for tax saving and where? 500 रुपया कर सकते हो सर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। कोई भी टैक्स सेविंग अंडर एटीसी ये नो ये करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से आप चालू कर सकते हो। 500 रुपए में पीपीएफ नो, 500 रुपए में एफडी, 500 रुपए में आपका ईएलएसएसडी, 500 रुपीज। Yeah. एक और सर क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिटायरमेंट ओनली कि somebody has a crore rupees but he wants safety of capital, तो रेगुलर इनकम के लिए सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, तो दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक चूज करना? नहीं हो सकता है सर, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ यू वांट टू गेट हायर रिटर्न, ओके, तो आपको यू नो रिस्क ज्यादा ही लेना पड़ेगा। गॉन आर द डेज वेयरिंग यू विल गेट द हायर गारंटीड रिटर्न एंड स्टिल यू विल हैव अ सेफ्टी ऑफ योर प्रिंसिपल। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ये जो स्कीम आई थी कि भाई गारंटीड रिटर्न 12%, 14%। तो ये गारंटीड रिटर्न क्या करता क्या है? एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा या 12 से 14% ही वापस करेगा, और हमने देखा है बहुत सारे फियास्को। सो बेटर है कि इक्विटी में अगर आप देख रहे हो ना एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में, तो शुरुआत में आपका हो सकता है कि थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट ऊपर नीचे जाए और विद द प्रॉपर विड्रॉल रेट अगर आप निकालते हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको वहां पे नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये भी टूल आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है, आप उनसे देख सकते हो कि आप कितना नेगेटिव रेगुलर इनकम के लिए जाने का देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपका विड्रॉल रेट या अकॉर्डिंगली आप अपने एसेट एलोकेशन सजेस्ट ये कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। बाय डूइंग सो आप इनिशियल फेज में क्या करोगे कि आप इतना नेगेटिव रिटर्न आएगा तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि यस यू आर अवेयर ऑफ दिस। नॉर्मली हम ये क्यों होते हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बिकॉज हमने वो रिजल्ट अपेक्षित किया नहीं रहता है, ओके, अनडिजायरेबल रिजल्ट, एंड that result suddenly lapse into your lap। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि yes this much worse can happen and I am ready for that, तो आपको कभी भी रिसेंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन विद हायर रेट ऑफ रिटर्न बहुत मुश्किल जगह मिल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके अश्विन जी सर, एक क्वेश्चन सर प्रोटेक्शन पे आया है। कस्टमर है, वो पूछ रहे हैं कि उनकी कंपनी उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट देती है जी, क्या, इसके अलावा उनको खुद एक पॉलिसी लेनी चाहिए? यस बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपका कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट कंटिन्यू नहीं करेगा रिटायरमेंट के बाद, तो क्या करेंगे? आपका कंपनी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 60 साल तक के कंटिन्यू करेगा, बराबर है। 60 साल के बाद आपको शाल और श्रीफल देके रवाना कर देगा सर, और 60वें साल में अपने को हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड और अपने परिवार रिलेटेड एलिमेंट ज्यादा आएंगे। तब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस अवार्ड नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी सकम विद सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स। इन दैट केस आपको पहले से ही वो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। ओके, आप टॉप अप कवर ले सकते हो, थोड़ा सा बेसिक कवर ले सकते हो जिससे आपका खर्चा भी कम हो, लेकिन आप यू विल इंश्योर दैट कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट ओके आपका वो कवर कंटिन्यू रहेगा, आपने पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ, और कुछ भी हो जाए तो भी एनी डिसीज रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपको आपकी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। अश्विन लास्ट क्वेश्चन। अश्विन जी सर, सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मार्केट आउटलुक पे ले लेते हैं। पहला कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट वी आर सीइंग इन नेक्स्ट 5 to 10 years, एंड देन इन द केस ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, एफडीज में जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग टर्न अराउंड हो रहे हैं इक्विटीज इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो व्हाट विल बी द मार्केट आउटलुक फॉर 5 to 10 years? मार्केट आउटलुक के लिए मैं फंड मैनेजर नहीं हूँ, सो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आस्क फॉर अ मार्केट आउटलुक, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि भाई लॉन्ग टर्म में इक्विटी के प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और अपने पास 135 करोड़ की जनता है जो डे इन डे आउट में वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। ओके, और अगर सिर्फ कंपनियां डिफरेंट हो सकती है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है कि भाई मैं खुद से अपने दिमाग लगा के अगर निवेश करता हूँ और वो कंपनी नहीं चले तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे प्रोफेशनल है, सो दे आर वर्किंग डे इन डे आउट इन द मार्केट एंड दे कैन रिप्लेस द कंपनी वेरी फास्ट। ओके, तो आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए। तो मार्केट आउट के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द आउटलुक। ठीक है,
Hashim? जी Okay, thanks. Last question था, sorry. मैं थोड़ा सा भूल गया था. So, please, I would like to end this session with this thought कि भाई आप लोगों का, अगर आप लोगों में से कोई स्पिंचर या बैचलर हो या न्यूली मैरिड हो, तो आपके पास एक बच्चा है, ऐसा पकड़ के चलिए. आपके पास एक चाइल्ड है, तो यू शुड कंसीडर यू आर हैविंग 2 चाइल्ड. और आपके पास 2 बच्चे हैं, तो यू शुड कंसीडर एज इफ यू आर हैविंग 3 चाइल्ड. तो आपके पास एक वर्चुअल बेबी है, ऐसा आप कंसीडर कीजिए. ओके, और जो आपका एक्चुअल खर्चा आप अपने रियल बेबी पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल, स्कूल फीस, कपड़े लत्ते, खिलौने, कोई क्लासेस, अपने वर्चुअल बेबी पे इसका आधा खर्चा आप कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी. Okay, now with the globalization, urbanization and new culture, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे रियल बेबी ने हमारा साथ देना चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट और प्रोबेबली करियर ग्रोथ, न्यूक्लियर फैमिली इन द अदर कंट्रीज, ये ट्रेंड अभी काफी प्रेवलेंट हो रहा है, तो हम उनको अपने शक्ल में ये नहीं रखेंगे. बट जो ये वर्चुअल बेबी पे आप जो आधा खर्चा एसआईपी के रूप में कर रहे हो ना, ये 20-25 साल बाद आपको पक्का क्या करके देगा, हेल्प करके जाएगा. और हमारे रियल बेबी ने अगर हमारा साथ दिया, तो हमारे जैसे भाग्यशाली पालक हम ही होंगे. तो इन दैट केस जो ये वर्चुअल बेबी से आपने वेल्थ पर्पस क्रिएट किया है ना, ये अपने अपने पोतों पोतियों को देके जा सकते हो. बट दोनों सिनारियो में विन विन सिचुएशन विल बी यूअर्स. ओके, और तभी सही मायने में आप सही मायने में सर उठा के जियो, ये आप कंसेप्ट अपने आप के लिए अप्लाई कर सकते हो. With this note, I would like to sign out, and please give a thought on equity investment. Still, if you have not commented, please make a comment. Yes, I want to invest, or whatever feedback you are having with this session. Thank you, and you can log out the session. Okay? Thank you. Good night.